Hello friends, our today's chapter is materials, metals and non-metals. We will complete this chapter in two parts. In part 1, we will discuss about physical properties of metals and physical properties of non-metals. If we look around us, we can see a large number of materials or things of different shape, size and texture. Anything which occupies space and has mass is called as a matter. So हम हमारे सराउंडिंग में अलग अलग मटेरियल देखते हैं, उनका शेप अलग होता है, साइज अलग होता है, टेक्सचर अलग होता है और वो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं. तो इस तरह के मटेरियल को कहते हैं मैटर. मैटर हैव अ डिफरेंट शेप्स, साइज, टेक्सचर एंड they occupied space. Matters are mainly divided into three groups: elements, compounds, mixture. अब elements किसको कहते हैं? प्योर मटेरियल जो होता है उसको कहते हैं एलिमेंट. कंपाउंड जो होता है वो दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्शन होती है तब कंपाउंड बनता है. When two or more elements combine chemically, compound is formed. मिक्सचर जो होता है वो दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स से बनता है लेकिन there is no fixed proportion of the element. There is no chemical reaction. So matter mainly divided into three groups: element, compound and mixture. Element is a substance which cannot be split up into two or more simple substances. इसको हम कहते हैं एलिमेंट. जो सबसे सिंपल वाला होता है उसका और छोटा पार्ट नहीं होता है. इट कैन नॉट बी स्प्लिट अप. एलिमेंट्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. दीज आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल जो होते हैं उनके एग्जांपल देखते हैं: आयरन, कॉपर, टीन, gold, platinum, silver, sodium, mercury. These are the some examples of metal. नॉन मेटल्स के एग्जांपल देखते हैं: कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, आयोडीन. These are the some examples of नॉन मेटल्स. सो एलिमेंट्स को मेनली कितने पार्ट में डिवाइड किया है? दो पार्ट में, मेटल एंड नॉन मेटल्स. अब ये जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है इनके हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या? जैसे कि फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखेंगे उनका स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट. मेटल जो होते हैं मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. मर्क्यूरी इज अ मेटल. ओनली मर्क्यूरी इज अ मेटल. इट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट. Other metals are found in solid state at room temperature, but exception is mercury. It is found in liquid state. Mercury कहाँ यूज करते हैं? थर्मोमीटर में. हमने देखा है mercury का यूज हम थर्मोमीटर में करते हैं. Examples of metals are iron, copper, tin, gold, platinum, silver, sodium, mercury. नॉन मेटल्स किस तरह के होते हैं? नॉन मेटल्स आर जनरली सॉलिड और गैसेस. सॉलिड नॉन मेटल्स कौन से होते हैं? सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन. दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड नॉन मेटल्स. गैसेस नॉन मेटल के एग्जांपल्स है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ गैसेस. एंड ब्रोमीन इज द ओनली वन नॉन मेटल. इट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर. So these are the some examples of non-metal found in solid, liquid and gaseous state. Bromine is the only one non-metal. It is found in liquid state at a room temperature. So this is the first physical state of metal and non-metal. Another physical property, malleability में क्या होता है? The property of metal by which they can be beaten into sheets is called as malleability. मेटल को अगर हम कंटिन्यूसली हैमर्ड करते रहेंगे तो मेटल टूटेगा नहीं, वो स्प्रेड होगा एंड कन्वर्ट होगा इनटू द शीट.
So property of metal by which they can be beaten into sheets is called as malleability. Most of the metals are malleable. Non-metals are non-malleable. They are brittle. What is meant by brittle? On beating, they can break into the small pieces. They do not convert into the sheet. They easily break into the small pieces. This type of the material is known as the brittle. So non-metals are brittle. So देखते हैं brittleness property कैसे होती है. Malleability में क्या होता है? Metal can convert into the sheet. Brittleness में होता है the property due to which non-metal is in solid state break up into small pieces on hammering is called brittleness. जैसे ही हम इसको हैमर करते हैं it convert into the small pieces, मतलब ये टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं इसके. So this type of the property is known as a brittleness and this property is only found in solid non-metals. And metals are malleable. They do not break into small pieces. They can convert into the sheet. चलो एक एक्टिविटी देखते हैं. एक्टिविटी 4.1. To show that metals are malleable and non-metals are brittle. इसके लिए हमें क्या लगेगा? Things are needed. Small pieces of iron nail, coal pieces, small pieces of thick aluminum wire and pencil lead. करना क्या है? प्रोसीजर क्या करना है? देखिए, beat iron nail with hammer. Repeat procedure with each pieces. मतलब जैसे आयरन नेल को हमने हैमर से बीट किया था वैसे ही कोल पीस को करना है, एल्यूमिनियम वायर को करना है, पेंसिल लीड को करना है. So हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा? We find that the pieces of aluminum metal, iron nail turns into thin sheet without breaking at all. इसमें एल्यूमिनियम मेटल एंड आयरन नेल इनको हम जब हैमर करते हैं तो ये टूटेगी नहीं, ये शीट में कन्वर्ट हो जाएगी. दे कन्वर्ट इनटू द थिन शीट. बट हम अगर कोल पीसेस एंड पेंसिल लीड को हैमर करते हैं सो इट कैन ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस एंड फॉर्म पाउडर. सो metals do not break into small pieces, they convert into thin sheet. Non-metals break into small pieces, they convert into powder. So this is the observation of this activity. Conclusion क्या आएगा? Metals like aluminium, iron can be turned into sheet without breaking. Metals are said to be malleable. Coal pieces, pencil lead breaks into pieces. They are known as brittle. So metals are malleable, non-metals are brittle. Another property, ductility property. The property of metal by which it can be drawn into wire is called ductility. हमने malleability में क्या देखा था? It can be converted into sheet. डक्टिलिटी में क्या होता है? मेटल कन्वर्ट इनटू द थीन वायर. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी. Gold and silver are the best ductile metals, so they are used in different ornaments. Non-metals are not ductile, they are brittle. Another property, लस्टर. जिस मटेरियल में शाइन होती है उसको हम कहते हैं लस्ट्रस प्रॉपर्टी. मोस्ट ऑफ द मेटल्स कैन बी पॉलिश्ड एंड हैव शाइनी सरफेस. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज अ मेटेलिक लस्टर. द शाइनी सरफेस ऑफ मेटल्स मेक देम गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ द लाइट. इनके ऊपर से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है क्योंकि देयर सरफेस इज वेरी शाइनी. सो उस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं मेटेलिक लस्टर्स. बिकॉज ऑफ देयर मेटेलिक लस्टर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड डेकोरेटिव आर्टिकल्स.
तो इसलिए इस तरह के मेटल्स ज्वेलरी बनाने के लिए, डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, जो मेटल्स है। नॉन मेटल्स कैन नॉट बी पॉलिश लाइक मेटल बिकॉज दे आर बिटर, दे आर वेरी डल। उनको पॉलिश नहीं कर सकते, इनका सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता। दे आर डल इन अपीयरेंस। हार्डनेस प्रॉपर्टी, मेटल्स आर हार्ड ड्यू टू देयर डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। For example, iron metal is very hard and strong. Due to this, iron metal is used in the construction of bridges, railway lines, different type of machines are made up from iron because iron is very hard and strong. तो ये hard and strong इस तरह की प्रॉपर्टी किसमें आती है? जो मटेरियल्स उनके अंदर डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, they do not break easily by applying force. Generally metals are hard. Non-metals are not hard and strong. They easily break with a large weight is put on them. Only diamond, it is a non-metal, it is a form of carbon, is the hardest material naturally occurring substance. So diamond किससे बनता है? कार्बन से बनता है, मतलब नॉन मेटल है। ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है जो नेचर में हमें मिलता है, बट इट इज अ नॉन मेटल। अदर नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयरन हैज 1539 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट। Tungsten has 3380 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन को कहाँ यूज किया जाता है? The filament which is present in the bulb, this is made up from tungsten. Its melting point is 3380 डिग्री सेल्सियस। सो जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। नॉन मेटल जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। एग्जाम्पल्स आर सल्फर इज अ नॉन मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट दैट इज 115 डिग्री सेल्सियस ओनली। So metals have a high melting point and boiling point. Non-metals have low melting point and boiling point. Conductivity of electricity. कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसका मतलब क्या होता है कि किसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है और किसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, दीज आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो होती है। सो दीज आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ electricity. Non-metals are bad conductor or poor conductor of electricity. Non-metal के through electricity flow नहीं होती है। Examples of non-metals are sulfur, coal, oxygen, nitrogen. These are the poor conductor of electricity. But carbon is in the form of graphite rod is a good conductor of electricity. तो जो ग्रेफाइट रॉड होते हैं वो कार्बन से बने होते हैं। इसका यूज एज ए इलेक्ट्रोड किया जाता है बैटरीज के अंदर। हम जो पेंसिल सेल वगैरह यूज करते हैं उनके अंदर एक छोटा सा रॉड होता है सेंटर में। इट इज मेड अप फ्रॉम ग्रेफाइट। इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोड। सोनरस प्रॉपर्टी, सोनरस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? आपने कभी बेल बजती हुई देखी है? मंदिर का बेल हो या चर्च का बेल हो, तो जब ये बेल बजती है तो एक रिंगिंग साउंड फॉर्म होता है। तो जो मेटल्स होते हैं इस तरह की प्रॉपर्टी मेटल्स में होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड बाय मेटल्स इज कॉल्ड एज अ सोनरस प्रॉपर्टी। सॉलिड नॉन मेटल्स डू नॉट मेक रिंगिंग साउंड। एग्जाम्पल्स आर metal like copper used for making temple, church bell. Metals are used for making wire, that is a string, for musical instrument. So metal have a sonorous property. They produce ringing sound. Non-metals do not produce ringing sound.
समरी देखते हैं जो अभी हमने प्रॉपर्टीज देखे थे। प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल। हमने पहला वाला फिजिकल प्रॉपर्टी देखा था फिजिकल स्टेट। मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं, नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होते हैं। मेटल्स में हमने एक सब्सटेंस देखा था, एक एग्जांपल देखा था मर्क्यूरी, इट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। नॉन मेटल में हमने एक एग्जांपल देखा था ब्रोमीन, इट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। अनदर प्रॉपर्टी इज द मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी। मेटल्स मेलेबल होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल होते हैं। ब्रिटलनेस प्रॉपर्टीज में मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं। डक्टिलिटी में मेटल्स डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब क्या है? दे कैन कन्वर्ट इनटू थिन वायर। लस्टर प्रॉपर्टी में देखा है मेटल्स लस्टर्स होते हैं, शाइनी होते हैं, नॉन मेटल्स डल होते हैं। हार्डनेस प्रॉपर्टी में हमने देखा था मेटल्स आर वेरी हार्ड, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में हमने देखा था मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा था मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड लास्ट प्रॉपर्टी हमने देखा था सोनरस प्रॉपर्टी। मेटल जो होते हैं हाईली सोनरस होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं नॉन सोनरस होते हैं, मतलब इनमें कोई साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।